और मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का इश्यू नहीं है, ये सिविलाइज एंड अनसिविलाइज लोगों का इश्यू है। कैसे है कि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं, जैसे आमना है, खालिद है, जैसे मेरी फैमिली, हम लोग गरबा जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, हमारी औरतें भी जाती हैं। ऐसा नहीं है जो काफी लोग आजकल हर ट्वीट के नीचे या कमेंट के नीचे लिख देते हैं आपकी औरतें जाती हैं क्या। अरे भाई, औरतों के पास टाइम है तो चली जाएंगी औरतें, इसमें कौन सा बड़ा इश्यू है। लाइक इवन इन माई ट्वीट देवर सेइंग कि आप अपनी औरतों को भेजते हो। मैंने कहा भाई, अगर उनको टाइम होगा ऑफिस से चली जाएंगी, हु इज स्टॉपिंग देम। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week with me and Amina. Today, we are thrilled to have Atif Iqbal, who's a prominent YouTuber, a nationalist, progressive Indian Muslim from Delhi. Welcome, Atif. Welcome, Atif. Thank you, Khalid bhai. Thank you, Amna, for joining me in your YouTube. So we'll discuss about the topic that you guys have picked. उसके बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर हम तीनों के अपनी अपनी क्या क्या राय हैं। All right. Thank you. So, as you can see from the episode title, we're going to discuss about the issue of what has been in the limelight in the last few weeks, the Navratra, and the Garba events, and the politicization, and the genuine concerns, and not some genuine concerns, some phobia, some exaggeration, some apologia, all of that. So, just to recap some events, on September 27th, 4 Muslim men were reportedly thrashed at a Navratra Garba venue in Gujarat's Ahmedabad city. Bajrang Dal youth wing of VHP took responsibility for the assault. Of course, since no FIR was filed, the case didn't go to the police. On 1st October, though, 8 Muslim men were held in Indore for trying to enter a Garba venue by hiding their identities as per the police. Completely condemnable. Good, they should face the law of the land. Now, if I go and I take who's one of my favorite journalists, Swati Goel Sharma's report, which she put out in Swaraj Mac, where she said anybody saying that this is just mere politicization, where Congress is saying, look again, you're targeting the poor Muslims, where BJP is saying, well, it is a pattern amongst the community and we need to stand up for the Hindu community, is lazy journalism. The roots do lie in the section of those Muslim men who fake their identity, get the Hindu woman to convert, and then later reveal that they were not Hindu men. And that is, a lot of people are afraid to use the term, but I think it happened with Amina as well. She used the term of love jihad by a section of Muslims. She said everyone's not about it. And Rahul Shiv Shankar on Times Now said, no, I don't want to use the term, right? And of course, you'll have communists say this is used to target. We have a very clear thing. If it's some sections of the community, very less, point 0 something. But the fact is, if there is a pattern and we are not going to discuss the problem, then we are complicit in some ways. But my argument here is, and I'll start with you, Amina, is that was this an issue to be used where you then say that all Muslim men, and I mean, I'm not doing any apology. We've been very critical of the ills in our community, where you say all Muslim men, and then you saw the discourse I had on Facebook with, I don't know how that person was in my friend list. That lady said that, show me the pics of your wife with Hindu men, and it was not enough for her that we did attend a Garba event. All my young cousins have done it, just recently attended, females or family members have done it. So your viewpoint on this whole fiasco, Amna? Yeah, there is a very basic few things. Every sensible person should understand and should be educated about that. If you pick any human, okay, you pick any community, any race, they have a certain kind of problematic mindset, right? They have flaws of their community. So when we discuss that problem, that discussion is because we want to get rid of that problem, not because we want to dehumanize those community or those human being, or want to justify othering of them. This is the very basic simple thing which I want everyone to understand. अगर हम वो नहीं करते तो मतलब ही क्या है हमारे किसी भी इशू को, सोसाइटल इविल को या सोशल जस्टिस की बात करने को या किसी भी चीज को डिस्कस करने का। हमारा मेन हमेशा रीजन यही रहा है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे
और हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आज सोसाइटी इतनी डेवलप हुई, तो हमें समझ में आएगा कि वही लोग थे। आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन अलग है, क्योंकि हमने मेहनत की, हमने पॉइंट आउट किया उन प्रॉब्लम्स को, हमने उस पर एक ऑब्जेक्टिविटी रखी, हमने उसको डिस्कस किया, और फिर धीरे धीरे जितना हम उसको डिस्कस करते गए, जितना इविल्स के अगेंस्ट हम लड़ते गए, उतना सोसाइटी रिफॉर्म होती गई, राइट। बट अगर वही चीज, लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। देखो, मोस्टली अगर आप इंडिया में देखो या वर्ल्ड में देखो, तो विमेन हैव बीन सब्जुगेटेड, ठीक है, सिस्टमैटिक। इट डजंट मीन कि सब्जुगेट करने में जो सिस्टम है वो सिर्फ मर्द ही हाथ निभाते थे, उसमें वो औरतें भी आ जाती थी उस पोजीशन पे जहाँ पे वो तय करती थी कि बाकी औरतों को उनका राइट ना मिले। इट्स लाइक अ सिस्टम। तो इसका जब हम इसकी बात करते हैं, या मैरिज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन रही है जहाँ हमेशा मैन को अपर हैंड मिला है, ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते रहे, तो इसका ये मतलब नहीं था कि हम चाहते थे कि हस्बैंड एंड आदमी और औरतें मिले ही नहीं, वो शादी ना करें, वो एक दूसरे से बिल्कुल उनका जेंडर सेक्सेस ही अलग हो जाए। इसका मतलब ये था कि सिस्टमैटिक एक चेंज लाना, जहां आदमी को एजुकेट किया जाए कि आपको ये जो सर्टेन प्रिविलेजेस मिले हैं, या जो आप इस वे में सोचते हैं, ये सही नहीं है। एंड औरतों को एजुकेट करना कि ये तुम्हारा राइट है, एंड उस मैरिटल इंस्टीट्यूशन में कैसे दोनों को पैरेलल और इक्वल वो मिला, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो वो हमारा मकसद होता है, ये हमेशा से रहा है। तो जब बात हुई गरबा की, तो यहाँ पे जब बात हुई, जो लोग गलत कर रहे हैं, नो बडी इज गोइंग टू से कि आप जो गलत कर रहे हैं उनको मत पनिश करो, या उनको उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम वहां आ जाती है ना, जहां ऑल लगा दिया जाता है, जहां पे को कहा जाता है कि नहीं, दो कम्युनिटी को मिंगल ही नहीं होना चाहिए। ना तो वो पॉसिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और ना ही आप उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। जब आपको इंटरनेशनल मंच पे कई बार आपको झेलना पड़ता है कि यू आर कंजर्वेटिव सोसाइटी, और आपका जो है बहुत ज्यादा ये माइंडसेट, ट्राइबल माइंडसेट है, तो आप सच में फिर वही कह भी रहे हो, अगर आप कहते हो कि नहीं, बिल्कुल ही सेपरेट कर दो। फिर द सेम टाइम बहुत से लोग इस बात पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, तो फिर वो क्रिटिसिज्म आप क्यों कर रहे हो जब आप वही बनना चाहते हो, तो राइट। एंड ऑल्सो देयर आर मंदिर जहां नहीं जाना, और भी उनको नहीं, मतलब देयर आर सर्टेन मंदिर, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां नहीं अलाउ है, तो वो पहले से अलाउ नहीं है, वहां लोग नहीं जाते हैं। बट यू नो, फेस्टिवल इंडिया की सबसे यूनिक चीज है मेरे हिसाब से। मतलब मेरे घर पे जब कोई फेस्टिवल, ईद होता है या बकरीद भी होता है इवन, तो बहुत सारे मेरे हिंदू फ्रेंड्स आते हैं, हम पार्टी करते हैं। क्रिसमस हम सब मिल के मनाते हैं। क्रिसमस तो इतना मतलब यूनिक मैं मानती हूँ, जो हिंदू मुस्लिम भी मिल के बनाते हैं, ठीक है। दिवाली मुझे बनाने का बहुत शौक है। मैं अपने ऑफिस में, मैं जो मेरे हिंदू कलीग हैं, उनसे ज्यादा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती रही हूँ कि नहीं, दिवाली पे ये करेंगे, वो करेंगे। तो इंडिया का एक यूनिक कल्चर और एक यूनिक, क्या बोलूंगी मैं इसको, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जहां हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। इसको खुशियां बांटना कहते हैं ना। इसको भी इतना पॉलिटिसाइज करना, कोशिश करना कि जस्टिफाई करें कि नहीं, इनसे सिर्फ दूर ही रहो, दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। दिस ओनली shows a certain kind of frustration from other side from me, कि जिस तरह से इनके मुल्ला है, वैसा मुल्ला हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हो रहे। मतलब जो चीज आप दूसरी साइड से कंडेम कर रहे हो, वो आप क्या नहीं हो रहा है, इसलिए आप गुस्सा हो रहे हो। What kind of logic is this? एंड जैसे वो लेडी थी जो इतना गुस्सा हो रही थी, आई मीन, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ डिसएग्रीमेंट विथ माय आइडिया, बट दे कैन सिविलिटी के साथ वो उसको आगे आर्ग्यूमेंट लेके आ सकते हैं। बट द वे पर्सनल अटैक एंड दोज, यू नो, वेरी लो लेवल का रिमार्क करना, उससे फिर लगने लगता है कि ये लोग कहाँ से ही सिविलाइजेशनल बैटल कह लें, सिविलाइजेशनल जर्निंग कह लें, रिफॉर्म कह लें, इसमें क्या ही ये रोल मतलब रोल प्ले कर पाएंगे, या क्या ही ऐड ऑन कर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग अ conflict which has no solution according to them. Right. Nee, Amna, I also want to disagree with you when you know, one of the eminent TV panelists of India spoke about, he brought in the Mecca Medina analogy, but I think that was not correct. Like, there was no sense of proportion there, because you can bring that to Ayodhya tomorrow. If the Hindu community feels that only Hindus should go to the Ayodhya temple, which is one of the most sacred places, I completely understand that. I completely understand that, right? There And you are can compare already, that to Makkah, Medina, Vatican, and for Jews. How can you compare Garba events to that? You're lowering the prestige of the sacredness, what you want to attach, right? I agree. First thing is that there are already such a mandir
जहाँ नहीं अलाउ है जाना। इनफैक्ट आई थिंक जैसा ही दीपक ने लिखा भी था कि कोई मंदिर है जहाँ अलाउ नहीं है नॉन मुस्लिम का जाना, सॉरी नॉन हिंदू का जाना, तो वो उस पे केस भी कर रहा है। तो ऐसे प्लेसेस ऑलरेडी हैं क्रिश्चियंस के लिए, वो वेटिकन है। मुस्लिम और देखो मुस्लिम का मक्का मदीना में एक चीज और भी है, इट्स अ वेरी एक प्लेस है जहाँ पे कि लोग जाते हैं हर साल। तो जो मुस्लिम है उनको ही पूरा टाइम नहीं मिल पाता, मतलब वो भी वेटिंग लिस्ट में रहते हैं वहां जाने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल रीजन ऑल्सो आई फील। बट आई थिंक मॉस्क वगैरह मजार वगैरह वो खुले होने चाहिए, और एक्चुअली वो खुले भी होते हैं, बट आप मॉस्क में जाके करोगे भी क्या, वहां पे सिर्फ प्रेयर करना है। मजार में बहुत सारे हिंदू ऑलरेडी जाते हैं, एंड फेस्टिवल में तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स लाइक वुड बी वेरी क्या कहते हैं लाई। ऑल्सो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी कि तहसीन पूनावाला की जो मदर थी, उनके मस्जिद थी उनकी अपनी, उस मस्जिद में गरबा खेला जाता था। Yeah. दिस इज व्हाट इंडिया इज, जिसमें मैं बड़ी हुई हूँ, एंड आई विल ऑलवेज फाइट फॉर इंडिया, दैट Right. इंडिया। Atif, your viewpoint, again, I want to put a counter question, and rightly the Hindu side, by the likes of a civilized discourse, like Swati Goel will say, that why should secularism and intermingling always be our burden? During Ram Navami processions, we see, stone pelters, sections of radical Muslims throw stones. They don't want intermingling. Why should it be only our case? And it's okay to have moderate voices like you, inclusive, but that does not define your majority. So, what would be your argument? I think that temple Amna was talking about is this Jagannath temple. I think जो कि उड़ीसा में है शायद, जहाँ पे नॉन हिंदूज का जाना अलाउड नहीं है। Right. एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट, पर मुझे लगता है कि ये ज्यादातर हिंदू मुस्लिम इश्यू से ज्यादा ये जो है आपका सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड लोगों का एक बहुत बड़ा इश्यू है। मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि मैं अमेरिका की एक ऐसे स्टेट पे रहता हूँ जहाँ पे हिंदुओं का सबसे लार्जेस्ट गरबा ऑर्गेनाइज होता है, और मुझे हर साल वहाँ पे इनविटेशन बुलाई जाती है कि भाई आप आओ यहाँ पे अटेंड करो। दैट्स अ डिफरेंट रीजन आई डोंट गो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइमिंग। पर मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का इश्यू नहीं है, ये सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड लोगों का इश्यू है। कैसे है कि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं, जैसे आमना है, खालिद है, जैसे मेरी फैमिली, हम लोग गरबा जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, हमारी औरतें भी जाती हैं। ऐसा नहीं है जो काफी लोग आजकल हर ट्वीट के नीचे या कमेंट के नीचे लिख देते हैं आपकी औरतें जाती हैं क्या। अरे भाई, औरतों के पास टाइम है तो चली जाएंगी औरतें, इसमें कौन सा बड़ा इश्यू है। लाइक इवन इन माई ट्वीट दे वर सेइंग कि आप अपनी औरतों को भेजते हो। मैंने कहा भाई अगर उनको टाइम होगा ऑफिस से चली जाएंगी, हु इज स्टॉपिंग देम। Right. तो मुझे लगता है कि ऐसे हिंदू या मुस्लिम जिनकी फैमिली में ऐसे बड़ा किया गया है, जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, अपब्रिंगिंग में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो लोग बहुत सिविलाइज होते हैं। पर ऐसे लोग जो ऐसी फैमिली के साथ बड़े हुए हैं जहाँ पे कट्टरपन बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है कि भाई अगर वो मुसलमान है तो मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, अरे वो हिंदू है तो मैं उसके टिफिन से नहीं खाऊंगा। तो जब ऐसी चीजें होती है तो वहां पे क्लैश बहुत ज्यादा होता है। पर जब ऐसे हम लोग देखते हैं जहाँ पे अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, जैसे आमना है, खालिद है, मैं हूँ, जेबा है, और भी लोग हैं, यहाँ पे हमारी फैमिली कभी रोकती नहीं हमको कि तुम गरबा नहीं जाओगे, तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम हिंदू दोस्त नहीं बनाओगे, तुम ये नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता है। तो ये दो लोगों का बहुत बड़ा रेशियो है, इसमें सबको पीस देना, सबको मिक्सर के अंदर डाल के सबको ग्राइंड कर देना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं करता। और कभी कभी एज अ मॉडरेट मुस्लिम जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है इन सिनेरियो में कि हम उनकी भी लड़ाई करें और हम अपनी भी लड़ाई करें, और हम इन सब की लड़ाई में हम खुद ही पिस जाएं इसके अंदर। तो ये इतना ज्यादा मोरल डाउन कर देता है कि मेरा मन नहीं करता, कभी कभी मैं बिल्कुल छोड़ के चला जाता हूँ, यूट्यूब ट्विटर सब छोड़ देता हूँ मैं। बट देन आई अगेन कम बैक जस्ट टू बी श्योर कि चलो कोई नहीं, वहां पे ऑपोजिट साइड से 1,000 लोग गाली दे रहे, कम से कम 5 लोग भी अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को समझेंगे, जो खालिद कहना चाहते हैं, जो आमना कहना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ गलत है, हम मानते हैं, पर आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई देयर आर गुड पीपल एज वेल, कि लेट्स सपोर्ट देम। ऐसा नहीं है कि सारे लोग खराब है, सारे लोग जो है बस अभी अभी बुर्का निकालेंगे और तलवार निकाल के सीधा काटना शुरू कर देंगे। देयर आर वेरी गुड पीपल आउट देयर एज वेल, जो चाहते हैं पीस हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, भाईचारा हो। और यही चीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है कि हम कैसे डिफाइन करें कि कौन ऐसा मुस्लिम है जो कि पीस चाहता है, कौन है वो नहीं चाहता है, वेरी सेपरेट टॉपिक। बट आप हर किसी को पीस देना, ये बहुत गलत है। मैं इसका बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। काफी हिंदू लोग बोलेंगे कि आप लोग तो हमें काफिर बोलते हो, तो देखो काफी उधर साइड से भी लोग हम लोग को मलिच बोलते हैं, तो अब क्या करें हम।
मलीचिक इज ए वेरी हाँ डेरोगेटरी टर्म जो पीपल यूज करते हैं मुसलमानों के लिए। तो अब इसका क्या है? अब उस चीज को कुछ लोग जाके उसको भी डिफेंड करते हैं, तो उनका मैं बिल्कुल रिलाई नहीं करता हूँ भाई, वो तो हर किसी चीज को डिफेंड कर सकते हैं। right. मेरे हिसाब से यही है कि रादर देन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, रादर देन सिविलाइज एंड अनसिविलाइज। सिविलाइज वो लोग जिनकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, अनसिविलाइज वो लोग जो आपसे दूर रहना चाहते हैं, चाहे आप मुसलमानों से दूर रहो चाहे हिंदुओं से दूर रहो। दैट्स माय आंसर। Right. आतिफ, आपसे सेकंड क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे स्क्रीन पे ट्वीट है जिसमें नुपुर जे शर्मा जो ऑप इंडिया की एडिटर है, वो डियर मुस्लिम्स, मतलब सारे मुस्लिम्स, 20 करोड़ इंडियन मुस्लिम्स, वो कहती है गरबा इज अ डीपली रिलीजियस अफेयर, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, सो अनलेस यू नो कन्वर्ट, एल्स स्टे अवे, राइट? नाउ द फैक्ट इज, उसी को एक हिंदू स्वारा भास्कर लिखती है कि लिटरली नथिंग स्मॉलर इन द वर्ल्ड देन द एम्प्टी हार्ट्स ऑफ संगीज, what petty pathetic bunch of people. My argument to this is this: Swara supports Zubair, Swara supports Rana, Swara supports Pratik, Swara supports Kavita, so she supports all the famous Islamist communists of India. Now the fact is they can argue that वो हिंदू नहीं है, जैसे हमारे टेररिस्ट आर्ग्यू करते हैं ये मुसलमान नहीं है। You are born in that identity, वो कौम रहती है आप में, you are defined by that. जावेद अख्तर सही कहते हैं, राइट्स होते हैं वो थोड़ी पूछेंगे नहीं भाई एथिस्ट है, नहीं भाई मॉडरेट है, छोड़ दो इसको, राइट? So let's get out of those kiddish arguments. वही हिंदू है ना जो कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट को सपोर्ट कर रही है, जो पेट्रनाइज कॉन्डिसेंट कर रही है, और वही कह रही है कि ठीक है ब्लास्फेमी में सर तन से ज्यादा स्लोगन्स मैं सर फेर दूंगी, राइट? वो कह रही है कि देखो तुम सारे मुसलमानों को क्या करिए। नुपुर यहां से कह रही है कि भाई सारे मुसलमान स्टे अवे, राइट? अब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक अ हिपोक्रिटिकल पोजीशन कि नहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, बट द पॉइंट इज आई नीदर वांट टू बी पेट्रनाइज्ड बाय स्वरा, नीदर बाय Nupur. That's my analysis on this. What is your analysis on this engagement between Swara and Nupur? ये जो ट्वीट था जो मैंने देखा था, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि आप घर वापसी करो, उसके बाद जो है आप जो है आप गरबा जो है अटेंड कर सकते हो, खेल सकते हो। मैं एक थोड़ा सा अपना रेफरेंस देना चाहता हूँ कि मैं एक टाइम पे अलग अलग जब डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफी को स्टडी कर रहा था, तो मेरे एक गुरु थे जिनका नाम था मिस्टर जय लखानी, जो कि अभी नहीं रहे। उनसे मैं इतना इंस्पायर हो गया था हिंदुइज्म की फिलोसफी जान के। मैंने उनसे बोला था कि मैं लिटरली कन्वर्ट करना चाहता हूँ हिंदुइज्म में। उस इंसान ने मुझे तब ये बोला था कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, घर वापसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तुम मुस्लिम रह के भी एक इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो या तो मिस्टर जय लखानी जो कि बहुत ज्यादा बड़े फिलोसफिकल है वो सही है, या तो ये ओपी इंडिया की शर्मा एडिटर सही है। तो भाई मैं तो जाहिर सी बात है उसके पास जाऊंगा जिसकी फिलोसफिकल स्टडीज ज्यादा स्ट्रांग है रादर देन। तो मुझे लगता है कि किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यही खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की, दैट नो वन इज फोर्सेस यू टू डू समथिंग। ठीक है, आप उसका एक अलग आर्ग्यूमेंट ले जा सकते हैं कि उन चीजों में है, बट ऐसा इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं वो कभी आपको फोर्स नहीं करते कि नहीं भाई तुम मुसलमान होगे तभी खाओ मेरे साथ बैठ के, नहीं तुम हिंदू होगे तभी खाओ मेरे साथ बैठ के। तो वो बहुत ज्यादा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट था। मुझे लगता है कि वो बस एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे कैसे भी करके, और सारे मुसलमान को अगेन एक ग्राइंडर में डाल के पीस दो। तो मुझे लगता है बहुत ही इलॉजिकल है। और जो काफी हिंदू लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, भाई हिंदुइज्म की फिलोसफी खुद कहती है कि कन्वर्जन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब कन्वर्जन, या तो आप आलू खाओ या तो मत खाओ, आप दोनों चीज हाथ में नहीं रख सकते आप। तो या तो आप कन्वर्जन फिलोसफी में बिल्कुल मानो या नहीं मानो, जब नहीं है तो फिर इसका आर्ग्यूमेंट तो लॉजिकल बन जाता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल ही बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। Right. Amina, you did जी। obviously write a tweet to that, and then you got a lot of choices of abuses by the far right, and of course, your usual enemies, the leftist and Islamists, were just maybe enjoying the fun. How do you see this interaction between Swara and Nupur, and where do you see yourself leaning more? Or देखो, एक साइड है जो कि सारे इस्लामिस्टों को अपना अलायंस बना सकता है एंड उसके अपने साथ शेर? खड़ा हो सकता है। और एक साइड है जो मॉडरेट जुबैर की मुस्लिम्स सबसे को बड़ी भी, फैन गर्ल तो स्वरा है ना? वही मैं उसी का बोल रही हूँ कि अरे एक है जो कि एक सेंसिबल मॉडरेट गुड ह्यूमन बीइंग को भी अपने साथ नहीं ले सकता क्योंकि उसकी आइडेंटिटी मुस्लिम है। एंड मेरे लिए दोनों ही मेरे बुक में कहीं नहीं आते हैं, मेरे लिए दोनों ही प्रॉब्लम है, तो सिंपल सी बात है। तो यही मैंने लिखने की कोशिश की थी कि इसमें से क्या है जो इंडिया को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। एंड बेसिकली यही टू नेशन थ्योरी भी है कि दो लोग साथ में रह ही नहीं सकते चाहे इंडिविजुअल कुछ भी करे क्योंकि उसकी आइडेंटिटी इज सच। तो यही टू नेशन थ्योरी है जो मैंने बाद में ये भी बोला कि बहुत लोग अंबेडकर के उस बुक को पाकिस्तान एंड पार्टीशन को जो करते हैं उनको पता नहीं है कि वो बुक जिन्ना के जो
उसकी पूरी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट, तो वो बुक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिखी भी उसी को जस्टिफाई करने के लिए लिखी गई थी। टू नेशन थ्योरी को 8 महीने के अंदर अंबेडकर ने लिखा था। अंबेडकर का करियर तकरीबन खत्म हो गया था, एंड अंबेडकर को वापस से जो करियर देने वाले हैं वो भी मुस्लिम लीग वाले ही हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल अंबेडकर के ही एक बहुत अच्छे कलीग में से थे, उनके साथी थे, और फिर बाद में वो मुस्लिम लीग की तरफ चले गए। एंड पता ही है उसके बाद क्या हुआ। तो इसके अपने पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है अंबेडकर की भी, और ये बुक लिखने का एक ये मकसद भी था कि किसी तरह से उसको जस्टिफाई किया जाए। इवन जिन्ना की स्टेटमेंट है जहां पे उन्होंने इस बुक को प्रेस किया है। द ओनली थिंग इज दैट कि इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का क्रिटिसिज्म का सहारा लिया था थोड़ा। एंड इवन कुछ जगहों पे उन्होंने यहाँ तक लिखा है इस बुक में कि मुस्लिम्स को पहले कांग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड कुछ उन्होंने साथ भी दिया था कांग्रेस का, बट स्लोली कांग्रेस के रूल की वजह से उनको प्रॉब्लम होने लग गई। तो बहुत सारे मतलब एक बुक से आप कोई एक पैराग्राफ उठा लेते हैं, वो आपको बहुत सपोर्टिव लगता है, बट उस बुक को पूरे कंटेक्स्ट में समझना, उसको पूरा पढ़ना बहुत अलग होता है। तो ये वही टू नेशन थ्योरी की भी माइंडसेट है जो मैं कहती हूँ इंडियन मुस्लिम में बहुत सारे में है, जो यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम तो क्योंकि मुस्लिम है तो हमें हमारी हर चीज अलग मिलनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट यही हो सकता है कि तुम चाहे कोई भी मतलब तुम कैसे भी माइंडसेट के हो, इंडिविजुअली तुम्हारा कुछ भी सोचना हो, तुम ह्यूमन बीइंग कितने भी ग्रेट हो, बट हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकते क्योंकि तुम एक मुस्लिम हो। सो सिंपल टू नेशन थ्योरी। एंड फॉर मी, मैंने जब दोनों इस आइडिया को ही रिजेक्ट किया है तो मैं क्यों किसी भी तरफ से इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी। So, हमने आपका as एक simple as that. एक ट्वीट था, काफी बेहतरीन ट्वीट था, जिसमें आपने इंडियन मुस्लिम से पूछा था कि आपके पास हमेशा चॉइस है, जिसमें आपने एक स्टोरी शेयर की थी ANI की कि मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज दुर्गा पूजा फॉर हिंदूज neighbors showcasing brotherhood in Kolkata, and then about a Muslim who's going for Hajj, and he's dressed up as two kids in the Ramayana avatar. Shehab Chatur, I guess is the name. And then you spoke about these 3 Muslim rogue criminal elements who attacked a Hindu, Madhusudan Modi, who during Garba event he was trying to protect Muslim women, Hindu women from getting molested. So I think that conveys the message, right? You want to elaborate a little on that? Yeah, What you want? I keep sharing such a stuff. Even I have shared once ki how a Muslim family in Bihar has donated their entire land for a mandir nirman. Okay. Right? They are also Muslim. उन्होंने अपना पूरा का पूरा जमीन एक बड़ा सा किया है, और वो भी मुस्लिम है। और वो मुस्लिम, एक बात ध्यान रखना कि जो दूसरे मुस्लिम की बात बोल रही हूँ मैं, वो कुछ वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, जिन्होंने बोला हमारे लैंड पे गणपति पूजा मत करो बेसिकली। ठीक है, तो वो भी मुस्लिम है। तो ये जो दोनों तरफ से कोशिश होती है ना मुस्लिम को बहुत ही मोनोलिथ दिखा करके एक जैसा बनाने की, वो दोनों का ही वो पूरा करता है, दोनों का ही मकसद पूरा करता है, बट इंडिया के भले के लिए नहीं है। वो इंडिया के भले के लिए वही है जो उस नुआंसेस को समझे और जो मुसलमानों को समझाए कि ये देखो राह है, तुम्हें इस राह पे चलना है, दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे, बिकॉज इंडियन मुस्लिम्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, दिस इज द रियलिटी। सो इफ यू हैव एनी कुछ अच्छा चाहते हैं इंडिया का, तो आप उसके सारे सिटीजन को चाहेंगे कि वो सही राह पे चले, तो वो क्योंकि उसी से इंडिया का भला होगा। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट इट। एंड वही मैंने उनको बोला कि ये देख लो, दोनों तरह के मुस्लिम हैं, आपको क्या बनना है इन द एंड, ये चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। Alright. आप खुद भी एक आपने फोटो डाला था आस्था कौशिक आपकी फ्रेंड के साथ, आप एक दुर्गा पूजा पे गए थे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अच्छा, काफी अच्छा था। और मैं हमेशा मतलब कुछ मैं फतवे जाती मिले भी रही। आपको जैसे शाहरुख को मिलते हैं हर साल, शाहरुख खान सलमान खान को मिलते नहीं हैं when they नहीं, मैं celebrate इतनी फेमस नहीं हूँ, गणेश चतुर्थी? इतनी नहीं, फेमस नहीं हूँ मैं, इतना नहीं, कुछ ऑफ नहीं कोर्स वो तो हम जर्रा भी नहीं है जितने वो करोड़ों में, बट कुछ आए आपको ट्विटर पे? नहीं। इतना देखने का अब टाइम भी नहीं मिलता, टू बी वेरी फेयर। Right. आतिफ, दिस इज रियली फनी। जिस पार्टी को आप, मैं और आमना ट्रोल करते रहते हैं, टीपू सुल्तान पार्टी, राइट? उन्होंने कहा कि गरबा में मुस्लिम लड़कों का क्या काम है, जिन लड़कों को पीटा गया वो पिटने के ही लायक थे। एंड आई अग्री विद दिस ट्वीट, किल मी, बट आई अग्री, आई कुड नेवर थॉट द डे विल कम। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस ट्वीट अबाउट टीपू सुल्तान's party where they say yeah, it's right, they got bashed up?
आई थिंक ये मैंने भी ट्वीट किया था, जहाँ पे आई थिंक मैंने रिस्पॉन्ड किया था, जहाँ पे आई थिंक आरफा या पता नहीं किसी ने डाला था कि कैसे मुस्लिम लड़कों को जो है पिटा जा रहा है गरबे के अंदर। तो मैंने उस पर रिस्पॉन्ड किया कि बिल्कुल सही किया उनको ट्वीट के। वो वहां पे एक अपनी आइडेंटिटी छुपा के जा रहे हैं, लड़कियों को स्टॉक कर रहे हैं, उन पे पत्थर फेंक रहे हैं। तो मैंने ये लिखा कि एक एक ग्रुप जो है वो पीस में बिलीव नहीं करता, सोसाइटल पीस में, और दूसरे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बिल्कुल सिविलाइज तरीके से रहे, पुलिस को कॉल करे जब तक वो पत्थर से आपकी ऐसी की तैसी कर दे मार मार के, और आप पुलिस आए, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की पुलिस बहुत जल्दी आ जाती है, और उसके बाद जाके उन चीजों को मैनेज कर ले। मैंने कहा ये क्या लॉजिकल बात है भाई। मैंने लिखा कि अगर मैं भी वहां पे होता तो मैं ही मारता उन लोगों को। तो तो ये तो अगेन बहुत ही लॉजिकल है। मुझे लगता है कि अगर जो लोग गरबा ऑर्गेनाइज भी करते हैं, दे मेक श्योर कि वो अपनी उनकी हर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी चेक करें, कौन है क्या है, जिनको इनविटेशन दिया जाए वो आए। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि अब कोई मुझे अगर ट्वीट करेगा कि उस मुसलमानों ने ऐसा कर दिया तो तुम बोलो। भाई मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, या खालिद ने या आमना ने। जस्ट बिकॉज आई एम born in certain community, I don't take the responsibility of that community. मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, खालिद अपनी जिम्मेदारी लेता है, आमना अपनी लेती है। Right. तो ये जो पहले क्या होता था खालिद भाई, कि मैं हमेशा सोचता था कि यार मुसलमानों ने ये कर दिया तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाता था कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब दुनिया वैसे ही मार रही है, ये और गलत हरकत करके आ जाते हैं उल्टा इधर। तो फिर मैंने इसको लेना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं क्यों लूं ठेका, अगर खालिद भाई किसी को मार के आ जाते हैं मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं, जस्ट बिकॉज इज मुस्लिम। तो ऐसे तो फिर ओसामा बिन लादेन मेरा सगा भाई हो गया, फिर तो ये तो ठीक है लॉजिक है। तो मैंने ये जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया। मैंने कहा जस्ट बिकॉज somebody इज born in certain community, I don't take any responsibility। अगर वो लॉ तोड़ रहा है आप उसे मारो। अगर टीपू सुल्तान की पार्टी अगर वो कह रही है कि भाई इनका लड़कों का क्या काम है, तो आप देख लें कि क्या काम है लड़कों का, उन लड़कों को वो ठीक है, आप आ जाओ, अपनी बहनों को भी लेके आ जाओ, अपनी माओ को भी लेके आ जाओ, सबको सबके साथ गरबा करते हैं। तो ये एक चीज समाज में क्रिएट करी जा रही है, हम उसका सपोर्ट करते हैं कि वो गलत लोग हैं, गलत काम कर रहे हैं, एक डिस हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उस चक्करों में आप बाकी लोगों को मत पीसो। मैंने हर साल दिल्ली में, क्योंकि चितरंजन पार्क में बंगाली लोग काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं दुर्गा पूजा, मैंने हर साल अटेंड किया है। बस फर्क इतना है कि मैंने जाके किसी को पत्थर नहीं मारा है तो मेरा नाम नहीं आता है। बस ये है कि मैं एक बार पत्थर फेंक दूंगा और मेरा भी नाम आ जाएगा। और मैं एक चीज थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक बहुत ज्यादा जो हमारा मीडिया है, इसका इतनी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि अगर कोई एक अच्छा इंसान या एक अच्छा प्रोग्रेसिव मुसलमान अगर कोई बात बोलेगा तो उसको कोई अटेंशन नहीं दिया जाएगा। वो ऐसे वो लोग भूल जाएंगे जैसे कि कुछ था ही नहीं। पर अगर किसी गंदे से मोहल्ले का गंदा सा इमाम अगर कोई एक ऐसी बात कर देगा तो वो सारे मीडिया में आने लगेगा। ही विल बिकम द सुपरस्टार ऑफ इंडिया, कि देखो भाई क्या कह दिया इसने। अरे भाई उसके मोहल्ले के लोग नहीं जानते उसका नाम क्या है मुल्ला का। तो ये लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है, दिमाग यूज करें, एनालाइज करें, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, खालिद भाई, आमना भाई, इन सबको सपोर्ट करें ताकि ये लोग आगे बढ़े। और यही कहना चाहते हैं। But Atif, I want to get your thoughts कि we are agreeing with Tipu Sultan party. They like जिन लड़कों को पीटा गया था वो पिटने के ही लायक थे। हम would you have ever thought you'll be agreeing with Tipu Sultan या party? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आई नेवर थॉट कि हम इस बात पे एग्री करेंगे, बट ये फैक्ट है कि बिल्कुल सही किया उनको पीटा। उनको मारना ही चाहिए, और आई थिंक ऐसा लगता है कि मैं उतना वायलेंस से बिलीव तो करता नहीं हूं, पर मुझे मौका मिले तो मैं ही मारूंगा। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, मतलब तुम देख रहे हो कि सारी दुनिया में तुम बदनाम हो रहे हो तो कुछ तो अच्छा काम करो भाई। है, मतलब आपने Right, जाके वहां पे और ड्रामे शुरू करती है, तो right. सही है जो वो उनके साथ ये। Right. So my final analysis, and then Amna can come in, and we'll wrap it up in the next few minutes. I'll give my quick 1 or 2 minutes. I think the way Swati Goel Sharma argued her case with the fact of sections, small sections, very small, but obviously it's always done by a small section, but you have to take accountability in the sense, this is a problem. There are people who are lying about their faith, changing the faith name to a Hindu, and you can call it whatever, love, jihad, grooming, but you have to accept. Agree. And she also spoke about the fact that yes, there can be inhibitions about the community, that yes, the men from the other side can have the predatory proselytization. Fact enough. Not what is with Nupur Sharma. And also, again, credit to Swati, she also spoke about single Muslim men. That's also, I can understand to that point, because if families are going, she's not, castigating all. We can agree, disagree to varying degree, right? I think it's important that civility ke saath aap wo argument karo, but not with Nupur. I mean, if you're saying all dear Muslims, I don't know what is it that you're wanting ultimately for India. That's my end on the whole Garba thing. To that lady who, I mean, I've blocked now. I've been going since childhood. My family female members have been going. We're still going to go. Boo hoo. Sorry if you don't like it.
So you got to cope with it and gulp it down, as you had told Amna, but you will have to gulp it down. So Amna, what about you? Yeah, I think देखो there is also thing जो जब मुझे राहुल ने मतलब टोका था कि लव जिहाद वर्ड, आई अंडरस्टैंड बिकॉज लव जिहाद वर्ड को अभी कोई वो नहीं मिला है, इट्स नॉट ऑफिशियल एकेडमिकली एक्सेप्टेड वर्ड। तो जो चीज नहीं एक्सेप्टेड है उसको यूज करना कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इवन जो लॉ बनाया गया है यूपी में वो लव जिहाद लॉ नहीं है, दिस इज द लॉ अगेंस्ट जो कन्वर्जन है शादी के बाद, वो लॉ illegal conversion, एंड हाँ विच अप्लाइड टू एवरीवन बेसिकली, इट्स नॉट forceful ओनली। by cheating propaganda. Yes. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखो इशू ये है कि जब हम ये सारी बातें करते हैं तो कई बार हम लोग एक लार्जर पिक्चर भूल जाते हैं। लार्जर पिक्चर में लेट मी बी वेरी वेरी विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेइंग दिस, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम डोंट वांट टू मैरी नॉन मुस्लिम, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम वो चाहते ही नहीं है शादी करना, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। हमारे घर में भी बोला जाता है कि नहीं करो, क्यों करोगे बाहर। सेम हैपेंस विद अदर कम्युनिटीज, दे उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं। तो इंटर रिलीजियस मैरिज, इवन इंटर कास्ट मैरिज इज नॉट एक्सेप्टेड और प्रमोटेड इन एनी कम्युनिटी जैसा लोगों को लगता है। अब उसमें क्योंकि आप डेटा उठा के देखोगे तो शायद 10% इंडियन भी इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं करते, हर तरह की इंटर रिलीजियस मैरिज मिलाकर देखा जाए तो यही सेम मुस्लिम्स में भी कहा जाता है। इनफैक्ट आई क्रिटिसाइज देम बिकॉज बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम लेके आते हो शादी करते हो नॉन रिलीजियस मुस्लिम फैमिली में तो तुम्हारा जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा, दे वोंट बी दैट गुड मुस्लिम, ये बोला जाता है रिगार्डलेस जेंडर, दैट्स द रियलिटी। तो वहां पे हमने लार्जर पिक्चर भूल जाते हैं। कई बार एक ऐसा वो बनने लगता है कि सब लोग दिन रात बैठ के यही काम ही कर रहे हैं कि कैसे हमें अदर रिलीजन की लड़की मिलेगी और हम उसको अपने घर, बिकॉज ऐसा नहीं है, 95% भी लोग ऐसे नहीं है, दे वांट टू मैरी इन देयर कम्युनिटी, देयर ट्राइब, विद ऑल द अरेंज मैरिज, नॉट इवन लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज भी सेम मुस्लिम से हुआ है तो भी वो माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता जब तक उनका अप्रूवल ना हो। तो इतनी तो कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, ठीक है, ये रियलिटी में नहीं भूलनी चाहिए। नाउ कम्स टू, हाँ एक सेक्शन है उस पे बात होनी चाहिए, वो इशू, क्योंकि किसी भी लड़की की जिंदगी खराब हो, वो एक भी लड़की क्यों ना हो, बट वो एक इशू है और हमें उस पर काम करना है, उसको ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करना है, ऑनेस्टली उसके पीछे क्या माइंडसेट काम कर रहा है उस पर बात करना है, बट वो नुआंसेस के साथ बात करना। अदरवाइज वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अलग अलग लोग उसको अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं एंड जो इशू है वो वही रह जाता है वहां पे, उस इशू का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और ऐसा लगता है कि वो बड़े एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि ये चीज हम लोग भूले ना, क्योंकि ये एजेंडे प्रोपेगेंडे में सब कुछ हो जाएगा, सबके अपने अपने मकसद पूरे हो जाएंगे, बट जो एक लड़की सह रही है वो भी ऐसी सहती रहेगी। सो दैट्स द इशू। ऑल्सो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम, कई बार ऐसा होता है ना जब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट जिस मुझे 2 मिनट देना, कि हम लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए हमेशा उसको बाहर का फियर दिखाते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपने खानदान में देखा है, बाहर जाओगी अपने मन की चीजें करोगी तो तुम्हें ये पे करना पड़ेगा। तो हम वहां पे लड़कियों को खुद के डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये चीज आगे आए। एक लड़की को हमेशा आजादी मिले, उसकी खुद की आजादी मिले, बट वो वेल अवेयर हो हर चीज के लिए, उसको आप वेल एजुकेट करो, वेल अवेयर करो और देन वो अपना डिसीजन ले सके। मैं एक ऐसी सोसाइटी चाहती हूँ कि हम ऐसी सोसाइटी देखें। एंड अब के जमाने में तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ मुस्लिम गर्ल जो नॉन मुस्लिम से शादी कर रही हैं, बिकॉज वी लिव इन अ सेक्युलर कंट्री, जिसको ये चीज का फायदा उठाना है वो उठाता है। तो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आपको वही शादी मिलती है कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़कियों की शादी हो रही है, इट गोज ऑन बोथ वे। Atif, डेटा you're नहीं fine. है, आई थिंक वी नीड टू कलेक्ट डेटा फॉर दैट, ताकि हमें पूरा पिक्चर मिल सके। Atif, you can wrap it up for us. Your final analysis on the whole controversy. या तो मैं क्या ये कहना चाहता हूँ इस पूरे सिनेरियो में कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहली बार हो रही हैं। ये जो भी चीजें हम समाज में, ये सोसाइटी में देख रहे हैं, ये पहले भी होती थी। आजादी से पहले भी होती थी, आजादी के बाद भी होती थी और अभी भी होती है। बस फर्क इतना है कि सोशल मीडिया की वजह से चीजें एम्पलीफाई बहुत हो जाती है। अगर पूरे इंडिया में कहीं अगर 2 मर्डर हो जाएंगे तो वो एम्पलीफाई होगा कि पूरे मुसलमानों ने निकल के हिंदुओं को काट दिया।
तो वैसा एम्पलीफाई हो जाता है, एंड आई थिंक सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। मुझसे काफी बार पाकिस्तानी लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं होती है। मैंने कहा कि अगर आप पॉपुलेशन देखते हो एंड द क्राइम इज डन ऑन मुस्लिम, वो नंबर बहुत रेशियो बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल है। उसको लेके रोना मतलब ये हर समाज में होता है। यहाँ तो गोरे लोग मार रहे होते हैं जो एथिस्ट होते हैं, अब मैं क्या बोलूँ उसको। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इंसिडेंट अच्छे अच्छे समाज में भी होते हैं, अच्छी अच्छी कम्युनिटीज में भी होती है। तो ये कहना कि आज सारी मुस्लिम कम्युनिटी पागल क्यों हो गई, हर जगह आपको नेगेटिव न्यूज क्यों आ रहे हैं, इट इज बिकॉज कि सोशल मीडिया इन चीजों को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रशिया यूक्रेन का देखो, तो आपके हर सोशल मीडिया पे यूक्रेन रशिया एवरीवन हैव डिफरेंट ओपिनियन। इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ये सारी चीजें करता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी चीजों से, पर आप इसको जरा सोचो समझो कि अभी कोई भी एक मुसलमान कुछ गलत काम करेगा, वो न्यूज़ पूरे इंडिया में फैल जाएगी। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ द पावर दैट सोशल मीडिया होल्ड्स। यही है। आप कभी भी इन क्राइम को देखोगे तो आपको ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो कि एक लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। अच्छे समाज के लोग नहीं होते हैं ज्यादातर, वो बहुत ही रेयर होता है। कुछ लोग कहेंगे वो आईआईटी वाले बंदे का एग्जांपल देंगे, दोस आर वेरी रेयर एक्सेप्शनल। यू कैन नॉट ब्रिंग रेयर केसेस एंड जस्टिफाई दैट इंटायरिटी दैट की सारी कम्युनिटी ऐसे करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा नहीं करते हैं। बस फर्क इतना है कि दे आर बिजी इन देयर डे टू डे लाइफ। जैसे काफी हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोगों से हमेशा कंप्लेन रहता है कि मुसलमान आके बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उनको 9 से 5 की नौकरी करनी है। मैं अभी नौकरी के बीच में बैठ के बोल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि दे ऑल हैव जॉब, दे ऑल हैव चिल्ड्रन टू ग्रो। उनको जिम्मेदारी है। अब वो आप चाह रहे हो कि उन जिम्मेदारी से निकल के आके वो जस्टिफाई करे कि हाँ, जो हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। हम जैसे लोग ही होते हैं जो थोड़े, जिनके जैसे खालिद भाई के बाल दिख रहे हैं, मेरी हालत खराब हो रखी है, आमना जो है अभी सो के उठी है, हम सब की बुरी हालत है। हम अपना अपना टाइम मैनेज करके अपने आप को रिस्क में डाल के ऐसा काम करते हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बंदा खड़ा होके बोले और जस्टिफाई करे तभी जाके वो एक अच्छा मुसलमान कहलाएगा, तभी जाके वो एक अच्छा इंडियन कहलाएगा। ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। आपके खुद के भी माँ बाप है जो कभी सोशल मीडिया पे आके इन चीजों को नहीं करेंगे करने, क्योंकि वो भी बिजी है अपनी जिंदगी में। तो लेट्स रिस्पेक्ट दैट। और जो लोग थोड़े बहुत निकल के आवाज निकाल रहे हैं उनको आप सपोर्ट करिए। यही कहना चाहता हूँ मैं, और आई हैव नथिंग एल्स टू से। Right. All right. So that was our analysis on the issues around the Garba and Navratri events. We pray and wish even these small incidents never happen. But and nobody is saying here that no, you. If there is a moment in the community's history where they feel they don't want people from other communities, that too will be respected because there should be no hypocrisy if other communities don't. But I think here it's very misplaced because even communities who you rightly consider are closed and not having reforms, but they too invite people on their festivals, right? And there must be a small number, but that small number is also huge out of the 20 crore Muslims who do celebrate their Diwalis with their friends and all. And yes, the endeavor is to ensure that they get more reformed, not that and it's not your responsibility, it's not of the other community. But if people are trying to say we want to get reform, but you want them to shun the identity completely, that is not happening. Religion has been there for 10,000 years, it is not going right. And everybody has their age of Renaissance, Reformation. You have to support them. At the same time, be brutally critical. We tear them apart, but not forget the humans behind that, right? So that's how Exactly. we would like Yeah. to, yeah. And I also want to add that I have a very positive mindset when it comes to India, and I trust the majority of Hindu and a section of sensible Muslim also, that slowly and steadily we will find the answer. Yes, there would be all kind of voices, but we are not losing this battle. Right. And also a big thank you to Atif Iqbal for joining us today. He runs a fabulous YouTube channel. Please do subscribe to that, like it, share it. He does some amazing content. One of the, moderate, brave, nationalistic voices who holds the Indian flag high up in US. Atif, please tell us about your channel. Tell us about, we'll put the link on the first comment and what do you do with your channel. So please. तो मेरा चैनल जो है उसका नाम है आतिफ इकबाल, और मैं उस पे जो है जो करंट सिनेरियोज इश्यूज हैं जो कि ज्यादातर इंडिया को लेके हैं, जाहिर सी बात है खालिद भाई आमना से इंस्पायर होके जो इंडिया की खुद की गंदगी है उसको थोड़ा हाईलाइट करना मैं पसंद करता हूँ कि भाई आखिर ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरे पास एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है
मैं उसको यूज करके एक अपने लोगों को बता सकता हूँ कि ये गलत है, एंड आई एम रेडी टू स्पीक फॉर इट। आई नो इट इज रिस्की बट आई विल डू इट। तो ये मैं करता हूँ अपने चैनल पे। और जब भी टाइम मिलता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि वीडियो के पहले मैंने कहा कि नौकरी वाला आदमी हूँ मैं, तो 9 से 5 की जिम्मेदारी से फंसा रहता हूँ। तो जब बहुत ज्यादा फंसा रहता हूँ तो वीडियो कम आती है, जब कम फंसा रहता हूँ तो वीडियो ज्यादा आ जाती है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बस यही Right. है। Okay, thank you so much, Atif, for coming on our show, and we have hope to see you more often. And join everyone here. It's a celebration. You can, Tahir, Zeba, Umar, everyone, and we can hopefully bring that change in the community. All right, and in the country, most important. All right. Yeah, once you have a good hairstyle, definitely I'll come again. I know. I don't know what I'm having a bad head. I just need to. Maybe I just need to. I should have just worn a cap today. All right. Okay. Okay, I get it. All right. Thank you, everyone. Bye bye. Alright. Have a great weekend. Bye bye.